Let us start the third unit of ASEAN, unicast and multicast routing protocols. Unit outcomes are, you can choose after this unit, you can choose relevant routing protocol for the given network situation. You can compare dynamic and static routing on the given aspect. You can calculate shortest path from a single source vertex to all other. You can explain functioning of the given multicast routing protocol. The first topic of this unit is interdomain and intradomain routing. So let us start the interdomain and intradomain routing. But before that, we have to explain some basic things regarding the internet and the various components connected into the computer network that can be formed internet. So let us see one by one. As we have discussed in previous chapter that unicast communication means communication between one sender and one receiver. So this unicast is nothing but one-to-one communication. In previous chapter, in previous unit, we had seen this one, that unicast communication means communication between one sender and one receiver. That is also called as one-to-one communication. In this chapter, we discuss how the routers create their routing tables to support unicast communication. हम इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि कैसे एक रूटर दूसरे नेटवर्क को यूजिंग द रूटिंग टेबल्स कैसे कम्युनिकेट करता है। या तो इस रूटर को रूटिंग टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और दूसरे रूटर का इंफॉर्मेशन इस रूटर में इसको ऐड करना पड़ेगा, तभी ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है. So their routing table of these two supports unicast communication. And we know that internet is divided into various administrative areas that is known as autonomous system, AS. We'll see this one after this discussion. AS, administrative area, or a number of computers connected to one router, that is one network, that is called as autonomous system or AS. That can be efficiently handle the exchange of routing information from one network to another network. तो autonomous system, एक autonomous system बनेगा, router रहेगा उसके अंदर, दूसरा autonomous system रहेगा, दोनों communicate कैसे करेंगे. Within a autonomous system, all the computers can able to transmit data, communicate कर सकते हैं, लेकिन हमें एक AS से दूसरे AS में डेटा को भेजना है, सेंड करना है. तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये हमने फोर्थ प्रैक्टिकल में हमने देखा. स्टैटिक रूटिंग का प्रैक्टिकल जो हमने किया था यूनिकास्ट यूज करके, यूनिकास्ट रूटिंग यूज करके. तो ये हमें दो AS के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें यूनिकास्ट प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है. दो डोमिनेंट that is two dominant routing protocols used inside the autonomous system. दो ऐसे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज होंगे AS के अंदर, AS उस पर्टिकुलर नेटवर्क एरिया के अंदर, कि जो प्रोटोकॉल जो रूटर को मदद करेगा डेटा एक्सचेंज करने में बिटवीन टू डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम. अब यहाँ पर प्रोटोकॉल की बात होती है, तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है. इन लास्ट सेमेस्टर वी हैड सीन दैट प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स. तो यहाँ पे स्टैटिक प्रोटोकॉल यूज होने वाला है, हम बाद में देखेंगे यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के अंदर.
So that is also rules and some procedures. It is a combination of rules and procedure. तो ये प्रोटोकॉल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. An internet is a combination of network connected by different routers. For example, मैं कुछ रूटर्स बनाता हूं यहाँ पे. जैसा ये रूटर का सिंबल है, फायरवॉल का सिंबल एक्चुअली होता है. मैं यहाँ पे रूटर एज ए रूटर उसको यूज कर रहा हूं. तो ये रूटर्स हैं. अब यहाँ पर रूटर का मतलब ये हुआ कि इसको एक कंप्यूटर, एक नहीं, ये नेटवर्क है. ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनेगा. तो ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, तीसरा, चौथा, पांचवा. हम इसको नाम देंगे नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, नेटवर्क डी एंड नेटवर्क ई. This is nothing but internet. The connection between one router or one network to another, like this. ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ये बनाया है. When a datagram goes from a source, this is a source and this is destination. Now we are going to transmit data packet from this source to this destination, to that destination. When datagram goes from this source to a destination, it will probably pass through many routers. This router, this router, this router, this router, and many routers, until it reaches the router attached to the destination network. ये रूटर इसके लिए इसको कनेक्टेड है, या तो हम कहेंगे कि ये कंप्यूटर इस रूटर को कनेक्टेड है. तो ये अलग अलग रूटर को पास करते हुए यहां तक पहुंचेगा. इसके बाद ये रूटर इसको डेटा ट्रांसमिट कर देगा. तो यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉस्ट. या तो हम इसे कहेंगे मेट्रिक, कॉस्ट और मेट्रिक. अब यहां पर कॉस्ट और मेट्रिक मींस क्या होता है? अ रूटर, दिस रूटर, ये कुछ ना कुछ डेटा पैकेट रिसीव करेगा फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क्स. अब इस नेटवर्क से आया, इस नेटवर्क से आया, या फिर इस नेटवर्क से आया, इस कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई है. तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक डेटा पैकेट इसको मिला है, डेटा पैकेट इसको मिला है इस कंप्यूटर को. रूटर इज यूजुअली अटैच्ड टू सेवरल नेटवर्क्स. ये रूटर अटैच विद दिस नेटवर्क, this router attached with this network, and this also network. So different networks, several networks. When it receives a packet, this router receives a packet to which network, when it जैसे इसको मिला, इस रूटर को एक पैकेट मिला, तो ये रूटर क्या करेगा? इस कंप्यूटर को पास कर देगा. ठीक है, इसके ऊपर सोर्स एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा. तो कहीं से भी, कहीं से आया, सोर्स से आया है, और डेस्टिनेशन मतलब वो कहां पे जाने वाले, दैट इज अ दिस इज डेस्टिनेशन. अब इसे यहां पर इसको डेटा सेंड करना है इस कंप्यूटर को. सो वन क्वेश्चन इज देयर, टू विच नेटवर्क शुड इट पास द पैकेट? ये पैकेट जो है, दिस पैकेट, ये पैकेट किस नेटवर्क को पास होगा? बी नेटवर्क को पास होगा, डी नेटवर्क को पास होगा, या सी नेटवर्क को पास होगा? ई तो बहुत दूर है. या तो ई को पास होगा. कहां पर पास होगा? तो ये क्वेश्चन है यहां पे. When this router receives a packet, to which network should it pass the packet? This packet to these networks. Now this decision to
which network it should pass. This decision is based on optimization. Optimization. This concept is there. What is optimization? यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है? ये ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पैकेट किस रूटर को या फिर किस नेटवर्क को इसने पास करना है, सेंड करना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली यहाँ पे भेजना है हमें, ये पैकेट यहाँ पे भेजना है, तो ये इसके थ्रू जाएगा ना, तो कहाँ पर भेजेगा? ये रूटर यहाँ पर भेजेगा, इस नेटवर्क को भेजेगा, इस नेटवर्क को भेजेगा या फिर इस नेटवर्क को भेजेगा? So that totally depends on the optimization. अब यहाँ पर optimization, which of the available pathway is optimum? Which of the available pathway? This is the available pathway. All these are the available pathways. ये available pathway नहीं है दोनों, या ये भी, क्योंकि हमें डेटा सेंड करना है, डेटा पैकेट सेंड करना है यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, फिर इसके बाद ये रूटर सेंड करेगा आगे यहाँ पे। तो यहां से हम कहेंगे कि किस अवेलेबल पाथवे से ये सेंड होगा, जो कि ऑप्टिमम पाथवे होगा। अब ऑप्टिमम पाथवे का मतलब क्या होता है? इसका कॉस्ट कितना है? मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं यहाँ पे, ये इसका कॉस्ट 3 है, इसका कॉस्ट 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है और ये भी 3 है। अब ये पैकेट कहां सेंड होगा? कहां से सेंड होगा, कहां से पास होगा? तो हम ऑप्टिमम पाथवे कौन सा ये लेना है। हम कहेंगे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है इस पैकेट को सेंड करने के लिए फॉर ए। इस ए नेटवर्क को या ए रूटर को किस नेटवर्क को पास कर सकता है? ये बी नेटवर्क को कर सकता है, डी नेटवर्क को कर सकता है या सी नेटवर्क कर सकता है। दैट इज डिपेंड्स ऑन ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन ये लिस्ट कॉस्ट के ऊपर ये काम करेगा। हम कहेंगे ऑप्टिमम पाथवे जिसका कॉस्ट कम होगा, हम उसे कहेंगे ऑप्टिमम पाथवे। तो उसके थ्रू ये डेटा पैकेट सेंड करेगा। यहां पर अप्रोच हमें लेना पड़ेगा। यहां पर हमें एक अप्रोच लेना पड़ेगा कि कैसे हम डेटा सेंड करें। One approach is to assign a cost for passing through a network. We call this as cost or metric. We call this cost. This high cost can be thought of as something bad. The high cost thought of as something bad. अगर हाई कॉस्ट है हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इट thought as bad. Why? The low cost is good. Thought as good. For example, if we want to maximize the थ्रूपुट इन अ नेटवर्क, इस नेटवर्क में अगर हमें थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना है, तो थ्रूपुट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क मीन्स द ओवरऑल इफिशियंसी, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दिस नेटवर्क, इट्स कॉल्ड एज थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क। परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड होगा? हाउ मच फास्टर दिस नेटवर्क इज, हाउ मेनी पैकेट्स इट कैन ट्रांसमिट, व्हाट
time it takes to transmit the data, how much time it takes to receive the data. So that is nothing but the overall performance. So this overall performance is nothing but a throughput. So this, if we want to maximize the throughput of this network, the high throughput means low cost. अगर यहाँ पे हमें हाई थ्रूपुट चाहिए तो इसका कॉस्ट हम लो रखेंगे. The high throughput means low cost and low throughput means high cost. अगर हमने हाई कॉस्ट सिलेक्ट किया मतलब लो थ्रूपुट आ गया. दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, अगर आपको अगर हम डिले मिनिमाइज करेंगे, डिले मतलब यहां से यहां तक सेंड करने में कितना टाइम लगता है उसको हमें मिनिमाइज करना है, उस डिले को मिनिमाइज करना है. तो लो डिले इज लो कॉस्ट एंड हाई डिले इज हाई कॉस्ट. डिले ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा. डिले कम, कॉस्ट कम. तो अगर डिले कम करना है तो कॉस्ट कम सिलेक्ट करना पड़ेगा. और ऑब्वियसली we use the least cost, minimum cost or shortest path between this source and this destination. Shortest path हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. So this is what we talked about, the cost metric. So here one concept we can use, static versus dynamic routing. Static versus dynamic. Static versus dynamic routing table. Static versus dynamic routing table. We know that routing table can be either static or dynamic. Routing table क्या होता है? It contains the all information regarding the various components of the computer network. Like PC है यहाँ पे, उसमें IP एड्रेस है, PC के ऊपर कौन सा IP एड्रेस है, रूटर कौन सा है, रूटर को कौन सा इंटरफेस हमने लगाया है, उसका सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अदर रूटर. इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर रूटर आल्सो. तो ये पूरा रूटिंग टेबल में होता है. सो रूटिंग टेबल कैन बी आइदर स्टैटिक और डायनामिक. स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है. हमने रूटिंग टेबल फोर्थ प्रैक्टिकल में देखा, स्टैटिक थर्ड प्रैक्टिकल में हमने यूज किया है, डायनामिक आल्सो. ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वो भी हमने यूज किया है थर्ड प्रैक्टिकल में. अगर आपको चाहिए तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए आप फोर्थ प्रैक्टिकल एंड थर्ड प्रैक्टिकल. सो इट क्लियर्स योर आइडिया रिगार्डिंग द स्टैटिक एंड डायनामिक एंड हाउ यू कैन यूज दिस यूनिकास्ट IP एड्रेस इन दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल. तो एक बार फिर से एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए. स्टैटिक टेबल, अगर हम स्टैटिक टेबल की बात करें, इज वन विथ मैनुअल एंट्रीज. यहां पर हम स्टैटिक टेबल में, स्टैटिक रूटिंग टेबल में हम मैन्युअली एंट्री करते हैं. मैनुअल एंट्रीज, जो भी एंट्रीज होगी वो हम मैन्युअली फिल करेंगे. मतलब IP एड्रेस है, रूटर का IP एड्रेस है, उसके बाद कंप्यूटर्स का IP एड्रेस है, और भी कोई कंपोनेंट है, आगे का जो है जो नेटवर्क है उसका IP एड्रेस क्या है, ये सब हम मैन्युअली करेंगे. डायनामिक में क्या होता है, यहाँ पर कोई हम मैन्युअली एंट्री नहीं करेंगे, दैट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली. उसकी एंट्री ऑटोमेटिक एंट्री अपडेट हो जाएगी. तो ये डिफरेंस है दोनों में, स्टैटिक और डायनामिक. रूटिंग टेबल में हम एंट्रीज मैन्युअली करेंगे और यहाँ पर अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिक. एज सून एज वन कंप्यूटर इज गेट कनेक्टेड, इट ऑटोमेटिकली अपडेटेड. यहाँ पर कनेक्टेड करना है, कनेक्शन करना है तो इसको
अपडेट करना पड़ेगा मैन्युअली। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, स्टैटिक एंड डायनामिक रूटिंग टेबल में। अब आज हमें इंटरनेट हम यूज करते हैं, हम स्टैटिक नहीं करते हैं, हम डायनामिक, दैट इज द नीड, डायनामिक रूटिंग टेबल यूज करते हैं, बिकॉज number of computers are there, number of different components are there, you can connect, you can disconnect, you can go into one AS to another AS, or all the different functions you perform. So at that time it is impossible to enter manually all the time. If someone enters into the network, the IP address of that must be automatically updated into the routing table. हम मैन्युअली नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक उसमें आना चाहिए। तो ये डायनामिक के थ्रू पॉसिबल होगा। सो टुडे an internet needs dynamic routing table. The routing table needs to updated as soon as there is a change in the internet. इंटरनेट में भी चेंज हुआ तब भी हमें यहाँ पे अपडेट होना चाहिए ऑटोमेटिक। डायनामिक रूटिंग टेबल में ये पॉसिबल है। अगर बात करूं मैं, तो अगर लिंक डाउन हो गई या फिर इंटरनेट यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो ये भी तो अपडेट होना चाहिए, ये मैन्युअली ये नहीं होता। रूटिंग टेबल में हमारा एक रूटर काम नहीं कर रहा, तो इसका ऑटोमेटिक एंट्री, अगर एक लिंक डाउन हो गई, व्हेन अ लिंक इज डाउन, it needs to update, and they need to update it whenever a better route has been found. अगर कोई एक लिंक प्रॉपर नहीं चल रहा है, वहां से हम डेटा सेंड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम दूसरा कोई पॉसिबल अल्टरनेटिव रूट अगर हमें मिलता है तो उसके थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है डायनामिक में, और स्टैटिक में ये नहीं पॉसिबल। स्टैटिक में हमें मैन्युअली सब कुछ करना पड़ेगा, and this is time consuming. Next is routing protocol. Next topic actually we need here, that is routing protocol. How can you define this protocol? As I said earlier, protocol's definition. Protocol की definition क्या है? It is a set of rules governing data transmission. ये सिंपल प्रोटोकॉल की एक डेफिनेशन है, हमने लास्ट सेमेस्टर में देखा। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डेटा ट्रांसमिशन। तो ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए काम में आता है। जब भी हमें कुछ डेटा ट्रांसमिट करना है कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर, तो हमें यहाँ पे प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। हम हमारे कंप्यूटर लैब में, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में कोई भी प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो वो है TCP/IP। TCP/IP। अब यहाँ पे वो अलग बात है, हमने वर्जन 4 करना है या फिर वर्जन 6 करना है IP का, वो हम यहाँ पे, दैट इज डिस्क्रिप्शनरी पार्ट। लेकिन प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डेटा ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे रूटिंग प्रोटोकॉल, हमने स्टैटिक रूटिंग प्रोटोकॉल 4th प्रैक्टिकल में देखा है। तो ये रूटिंग प्रोटोकॉल, तो क्या होता है रूटिंग प्रोटोकॉल? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, set of rules and procedures. Set of rules and procedure is called as routing protocol. It let routers in the internet inform each other of changes. अगर कुछ रूटर में कुछ चेंजेस है तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ प्रोसीजर्स यहाँ पे अडॉप्ट करनी है, तो ये होता है रूटिंग प्रोटोकॉल। इट अलाउज रूटर्स टू शेयर व्हाटएवर दे नो अबाउट द इंटरनेट ऑन देयर नेबरहुड। नेबरहुड मतलब दूसरा नेटवर्क। अगर ये रूटिंग प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों नेटवर्क्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। It allows the routers to share whatever they know about the internet
जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में ये उनको पता रहेगा। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउज द रूटर इन फॉर एग्जाम्पल, I take an example that one router is there in Amravati and another router is there in Akola. So sharing information, ये दोनों information share करेंगे for example. So at that time it allows, this router allows in Amravati to know about the failure of any network in Akola. यहाँ पर ये दो अलग अलग सिटीज में ये रूटर्स सिचुएटेड हैं। यहाँ पर भी कुछ रूटर और कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, नेटवर्क्स है यहाँ पे। अब यहाँ पर कुछ फेलियर होता है तो इसका इंफॉर्मेशन अमरावती के किसी एक रूटर को रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है रूटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू। Routing protocol also includes procedures for combining information received from other routers. From other routers, it also receives some information. Routing protocol can be either, अब यहाँ पर routing protocol पे अगर बात करूँ मैं फिर से, तो routing protocol can be either interior protocol or it is exterior protocol. अभी इंटीरियर प्रोटोकॉल क्या होता है और एक्सटीरियर प्रोटोकॉल क्या होता है? ये इंटीरियर प्रोटोकॉल जो है, रूटिंग प्रोटोकॉल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इंटीरियर प्रोटोकॉल भी हो सकता है और एक्सटीरियर प्रोटोकॉल भी हो सकता है। तो इंटीरियर प्रोटोकॉल क्या होता है? इट हैंडल्स, दिस इंटीरियर प्रोटोकॉल कैन हैंडल्स इंट्रा डोमेन रूटिंग। इंट्रा डोमेन रूटिंग हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, इंट्रा डोमेन एंड इंटर डोमेन। इंट्रा डोमेन रूटिंग को हैंडल करता है इंटीरियर प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर प्रोटोकॉल हैंडल्स इंटर डोमेन रूटिंग। एक्सटीरियर प्रोटोकॉल इंटर डोमेन रूटिंग को हैंडल करता है, वाइल इंटीरियर प्रोटोकॉल ये इंट्रा डोमेन रूटिंग को हैंडल करता है। अब यहां पर इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन के बारे में बात करूं मैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन। इंट्रा डोमेन मतलब अगर मैं एएस की बात करता हूं, एक एएस autonomous system which have number of computers। यहां पर मैं अगर ये स्विच है, ये रूटर है, फिर से यहां पर कुछ कंप्यूटर्स और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर नेटवर्क को मैं AS1 नाम दे दूंगा, एटोनॉमस सिस्टम 1 नेटवर्क। अब ऐसा ही दूसरा एक नेटवर्क होगा, हम उसको नाम देंगे AS2। एटोनॉमस 1 और एटोनॉमस 2। तो यहां पर भी एक रूटर है, यहां पर भी नेटवर्क है, यही डायग्राम अगर यहां पर अगर आप इमेजिन करेंगे। अब यहां पर मैं एक कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट कर पाता है इस कंप्यूटर को विद इन अ सेम एटोनॉमस सिस्टम, विद इन अ सेम एएस के अंदर ही अगर डेटा पैकेट सेंड हो पाता है या फिर हम कहेंगे कम्युनिकेट कर पाता है, देन इट इज कॉल्ड एज इंट्रा डोमेन रूटिंग। अगर ये कंप्यूटर
इस कंप्यूटर को, सॉरी ये तो स्विच होगा, इस कंप्यूटर को अगर डेटा ये ट्रांसमिट कर पाता है और ट्रांसमिट कर रहा है तो हम कहेंगे इट इज इंट्रा डोमेन रूटिंग। अब बात ये है कि ये तो एक नेटवर्क है, हमें दूसरे नेटवर्क को भी तो ट्रांसमिट करना है। रूटिंग प्रोटोकॉल हमने देखा फोर्थ प्रैक्टिकल में, मैं बार बार याद दिला रहा हूं आपको फोर्थ प्रैक्टिकल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यूनिकास्ट, यूजिंग यूनिकास्ट। तो यहां पर ये तो यूनिकास्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे हमें स्टैटिक रूटिंग यूज करना है यहाँ पे। तो यहां पर ये कंप्यूटर अगर इस कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तब, और या कर रहा है, ये कंप्यूटर इसको कर रहा है, तो ये पहले रूटर को जाएगा, फिर रूटर इसको इंफॉर्मेशन दे देगा, तो वो होगा एक्सटीरियर प्रोटोकॉल। हम उसे कहते हैं इंटर डोमेन रूटिंग। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। विद इन एएस इंट्रा डोमेन, outside the AS that is inter domain. So this is about the previous knowledge regarding the networking before starting the intra domain and inter domain protocol. So next in next lecture we'll see this intra domain and inter domain.